اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو رجاج ولا عرش ذات نهاد ولا خلق ذو تماج ذلك مبتدأ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطاهري السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر البهر الزاخر ما شاء الله ما شاء الله الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع وغنفر أبي شبه وشبه قاسم طوبى والسفر الأشجع المتين الإمام المبين الأشرف نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب ما شاء الله إمام المشارق والمغارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد على سيدة النساء الإنسية الحوراء بالأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرار الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد حضرتان سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خداوند عالم خود یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق ہے کہ جس کا احترام کرنا لازم ہے. اس کائنات میں ہم نے کچھ افراد کچھ مخلوق ایسی خلق کی ہے کہ جس کی تعظیم و تکریم ضروری اور واجب اور لازم کی منزل ہے. اور یہ تکریم یہ احترام یہ تعظیم یہ سلام اتنا لازم ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو جو کچھ کیا وہ کچھ کام نہیں. اگر جو کچھ کیا وہ کچھ نہ کام آئے گا اگر یہ نہ کیا. اس لیے کہ جس سواری پا اب یہ جملہ ضائع نہ ہوگا انشاءاللہ. جس سواری پا آپ کی تمام حاجت اعمال سوار ہو کے اللہ تک جائیں گے تو سواری کا نام محبت ہے.
ये कि अब जाहिर है कि अगर मोहब्बत अहले बैत छूट गई तो आपके अमाल आप ही तक रह जाएंगे। अल्लाह तक पहुंचाने के लिए वसीला और उस वसीले का नाम है अहले बैत। अच्छा देखिए, वसीला ऐसा नहीं है, मैं तमीज़ में वक्त नहीं ले रहा हूँ, मुझे अब तक जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, जिसको आना था वो आ चुका है, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। अब आप बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, हमें जो सुनाना है वो आप सुनते रहें इंशाअल्लाह और कीजिएगा। तो जिस सवारी पर सवार होके हमारी दुआएं, हमारी हाजतें, हमारे अमाल अल्लाह तक पहुंचेंगे, उसका नाम है मोहब्बत। तो बगैर वसीले के हमारी इबादतें भी अल्लाह तक नहीं पहुंचती, अल्लाह तक नहीं पहुंचती, बगैर वसीले के अल्लाह तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं है कि वसीला कोई मानता नहीं है, वसीले को हर किसी को जरूरत है और हर कोई वसीला अपनाता है। बगैर वसीले के उसका काम चल ही नहीं सकता, बगैर वसीले के काम चल ही नहीं सकता है। मैं इतनी आसान गुफ्तगू करूंगा, बच्चे भी ताकि मेरे साथ जुड़े रहें। बगैर वसीले के कोई काम नहीं होता है। छत पर जाने के लिए जीने को वसीला बनाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको सवारी का वसीला बनाना पड़ता है। और कर रहे आप, ये वसीले का कोई मुनकिर नहीं है, वसीले का कोई मुनकिर नहीं है, हर कोई वसीला अपनाता है। लेकिन फिर आप बताइए, जब हर कोई वसीला अपनाए हुए है तो हर कोई नजात याफ्ता क्यों नहीं है? खाली वसीला अपनाना काफी नहीं है, वो वसीला अपनाना है जिसे अल्लाह ने बनाया है। वो वसीला अपनाना है जिसे अल्लाह ने बनाया, बंदों का वसीला नहीं बनाया हुआ अपनाना है। अल्लाह का बनाया हुआ वसीला अपनाया जाएगा तो वो पहुंचाएंगे। अब इसीलिए अल्लाह ने अहले बैत को बनाया है। अहले बैत है वसीला, हमारे और आपके दरमियान वसीला है अहले बैत। हमारी हाजतें वहां तक पहुंचाएंगे, उसके अहकाम यहाँ तक पहुंचाएंगे। इसलिए कि अगर हम उस तक पहुंच जाए तो हम ना रहे, अगर वो हम तक आ जाए तो वो ना रहे। अगर हम वहां तक जाए तो हम ना रहे, वो आए तो वो ना रहे। तब अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक बनाई जो ना वो है ना हम हैं। अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक बनाई जो ना वो है ना हम है, ना वो ना हम, बल्कि वो दरमियान के ऐसे अल्लाह के नूर से बनाए हुए हैं। और अल्लाह ने उनको ऐसे पैकर में ढाला कि वो जब हमारे दरमियान आते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी भी आंखें हमारी जैसी, इनके भी हाथ हमारे जैसे, लेकिन जब वहां जाते हैं ऐसा कभी नहीं ले सकता। लुत्फ उठा रहे हैं ना इंशाअल्लाह, लुत्फ आएगा। शहजादी ने चाहा तो अल्लाह ने कुछ मखलूक बनाई है जो ना वो ना हम। क्या कहने, यहाँ आए तो दिखने में लग रहा है आंखें हमारी जैसी है ना, दिखने में ये लग रहा है चेहरा हमारा जैसा, मगर है नहीं। आंखें ऐनुल्लाह है ना, हाथ यदुल्लाह है ना, ज़बान लिसानुल्लाह है ना। सिर्फ दिखने में हम जैसे लग रहे हैं, मगर मानिएगा नहीं हम जैसे, हम जैसे नहीं है। हम पैकर में इसलिए भेजा गया है ताकि हमारी वो हालत ना हो जो कौम मूसा की हुई। इसकी भी वजाहत करना पड़ेगी। और कर रहे जो वो हालत ना हो जो कौम मूसा की हुई थी। याद है ना, मूसा की कौम जा रही है कोहे तूर पर, जिद में है अल्लाह देखेंगे।
सीधे अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह ने कहा तुम तो अल्लाह को तो नहीं देख सकते हो, वलीउल्लाह की एक झलक दिखाते हैं। कौन मर गई? मूसा बेहोश हो गए। गौर कर रहे हैं आप? तो ये न वो नहीं, हाँ, बल्कि ये बीच में अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है कि जब वहां जाएंगे तो उसके तो नूर से ही बने हैं। यहाँ आएंगे तो हमें भी अजनबियत ना हो, अब शरीयत पहुंचाने में मदद मिलेगी। और कर रहे हैं, अब शरीयत पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब देखिए अल्लाह ने इनको जब बनाया तो उस वक्त कुछ नहीं बनाया था, जब इनको बनाया तो कुछ नहीं, कायनात का वजूद भी नहीं था। हमारी और आपकी क्या औकात, कुछ नहीं, बल्कि लफ्ज़े कुछ भी नहीं था। लफ्जों की भी खिलकत बाद में हुई है। लफ्ज भी नहीं थे, जुमले नहीं थे, हर्फ नहीं थे, कुछ नहीं था। तो आप जरा मंजर देखें कि जब कुछ नहीं है, ये पांच हैं, वो है, ये कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, शुरू की इबादत, इन्होंने की इबादत, वो कहलाने लगा माबूद, इन्होंने किए सजदे, वो बना मस्जूद। वो कर रहे हैं आप, वो मस्जूद कहलाया। अब लीजिए आगाज हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, यहाँ से आगाज हो रहा है। अब जाहिर है कि अल्लाह ने इनको बनाया है तो इनको इस दुनिया में भेजना भी था, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, इनको भेजना था। अब बड़ों को भेजना हो या बड़ों को आना हो तो उसका एक कानून है। कानून क्या होता है? कानून ये होता है कि जब हमारी बस्ती में सीएम पीएम आने वाला होता है तो सजाया जाता है, कानून बिछा दी जाती है, और ये कानून है ना, सजाया जाता है। बस याद दिला रहा हूँ। फिर वो बड़ा आ जाता है, कहने अभी नहीं आता है, उसके उस बड़े के कुछ बड़े ऑफिसर्स आते हैं, वो लोगों के जहनों को आमादा करते हैं कि नहीं बड़ा आने वाला है। तब अल्लाह ने बड़ों के लिए कायनात सजाना शुरू की। आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा किया, दरियाओं में रवानी, समंदर में लचकानी, कलियों को झटकाया, डालियों को लचकाया, तारों को खटकाया। ये पूरा निजाम कायनात बन रहा है। और बन जब पूरी कायनात सज गई तो लोगों को आमादा करने के लिए बड़े ऑफिसर्स को अल्लाह ने भेजना शुरू किया। चले जाइए, नूह चले जाइए, इब्राहीम चले जाइए, मूसा चले जाइए, ईसा चले जाइए। जब लोगों के ज़हन आमादा हो गए कि अब बारी है 5 बड़ों की आने की, हे मोहम्मद आप जाइए, हे अली आप जाइए, हे फातिमा आप जाइए, इनको भेजा। अब ये 5 आ रहे हैं, ये 5 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाद में आए ना, वहां पहले इनके सदके में कायनात बनाई है अल्लाह, इनके सदके में अल्लाह ने कायनात बनाई। तो जब अल्लाह कायनात सजा रहा था तो सबसे बड़े इनके नौकर को जब बनाया, जिसका नाम जिब्रील है, गौर कर रहे हैं, जिसका नाम जिब्रील, जब वो खल्क हुआ तो उसने देखा 5 नूर मुझसे पहले। कहा परवरदिगार ये कौन है? आवाज दे, अगर ये ना होते तो तू होते। कहा परवरदिगार ये इतने हैं, मैं तो तारुफ करा दे कौन लोग हैं, बता दे कौन लोग हैं। आवाज दे, अगर जानना चाहता है तो सुन ले, तारुफ करा रहा हूँ। अनल महमूद हादा मोहम्मद, अनल आला हादा अली, अनल फातिर हाज़ी फातिमा, अनल मोहसिन हाज़र हसन, अना कदीमुल एहसान हाज़र हुसैन। अल्लाह बार बार कह रहा है अना 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 अना, मैं, ये अना सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये अना या उसके लिए है, ये कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए जो कह रहा अना अमीरुल मोमिनीन, अना सुल्तानुद्दीन, अना कादुल मुहद्दिरीन, अना हब्लुल्लाहिल मतीन।
ہیں، غور کیجئے گا، یہ تو میں یاد دلا رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن تک یہ باتیں پہنچی ہوں، بس یاد دلا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو بنایا، اور تعارف جب جبریل نے پوچھا کون، تو اللہ تعارف کرا رہا ہے انا کے ذریعے، یہ لفظ انا پہ غور کیجئے گا، انا میں محمود محمد، اعلیٰ علی، فاطر فاطمہ، محسن حسن، قدیم الاحسان حسین۔ غور کر رہے ہیں، اللہ تعارف کا ذریعہ بنا رہا ہے انا کو، کہاں؟ عرش پر۔ جب عرش پر جبریل نے پوچھا یہ کون، تو اللہ نے کہا انا المحمود، انا الاعلیٰ، انا الفاطر، انا المحسن، انا قدیم الاحسان۔ وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے، چادر کے نیچے آئے۔ اب اتفاق عجب ہے، منظر عجب ہے کہ نہ پوچھنے والا بدلا، نہ بتانے والا بدلا، نہ پنجتن بدلے، وہی جبریل پھر پوچھ رہا یا رب وہ منتظر کسا، وہ دیکھا چادر کے نیچے کون ہے، جب اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود محمد، میں اعلیٰ علی، میں آواز دی ہوں فاطمہ، وہی تو تعارف کو بدل دیا، وہاں انا یہاں فاطمہ، آواز آئی میں نے تعارف کا بدلا ہے، میں نے تو عظمت فاطمہ بتائی کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے، میری انا کا نام ہے۔ بیٹی کا نام نہیں ہے، میری انا کا نام ہے۔ جس پر آپ ناز کریں وہ اور ہوتے ہیں، جس پر خدا ناز کرے وہ فاتحہ۔ اور کر رہے ہیں وہ بطول ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، پھر میں آپ کی خدمت میں جملہ دہرا رہا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو، میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، غور کیجئے گا۔ جناب سیدہ انا، اللہ کی انا، یہ حدیث میں نے یہاں بھی عرض کی ہے، مگر اس حدیث سے فائدہ اٹھا کے نتیجہ دوسرا ہے، غور کیجئے۔ یہ حدیث میں نے عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد آ جائے گا، میں تفصیل اس کی نہیں بیان کروں گا، کہ نبی نے اور مولا علی نے دونوں نے کہا ہے، مولا علی سے بھی یہی جملے ہیں اور نبی سے بھی یہی۔ نبی نے فرمایا یا علی آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی، ہماری مدد کھل کے کی، اور مولا علی نے بھی فرمایا میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے اور آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی۔ یاد آ گیا نا، یہ حدیث میں نے عرض کی تھی، اس سال نہیں اس سے پہلے جب آیا تھا تو میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب نتیجہ سناتا ہوں، نتیجہ اس کا الگ تھا، اس سال میں الگ نتیجہ دے رہا ہوں۔ تو مددگار کون ہوا؟ مددگار کون ہوا اس حدیث کے ذیل میں؟ مددگار ہوئے مولا علی نا، کیونکہ تمام نبیوں کی مدد علی کر رہے ہیں، تو مددگار علی ہوئے نا۔ مددگار کون ہوا؟ علی۔ آدم کی مدد کرنے والا علی، نوح کی مدد کرنے والا علی، موسیٰ کا مدد کرنے والا علی، عیسیٰ کا مدد کرنے والا علی، یہی حافظ داؤد، یونس، یعقوب، یوسف، شعیب، سب کی مدد کرنے والا علی ہے۔ تو مددگار کون بنا؟ علی۔ اب آپ کو یاد دلاؤں، نتیجہ سنا دوں، مددگار مولا علی۔ اب جب فاطمہ کی شادی نبی نے علی کے ساتھ کی تو علی سے سوال کیا، آواز دی یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی یا رسول اللہ مددگار، یا رسول اللہ مددگار، تو مجھے بھی کہنے دیجئے جو نبیوں کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ۔ یہ ہے بطول، علی کی مددگار ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے سب کو الگ نور سے بنایا ہے، بطول کو اپنے ہی نور سے بنایا مگر الگ نور سے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، الگ نور سے بنایا۔ تو شہزادی کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟
अरे इतनी अजमत है, इतनी फजीलत, चुना है ना अल्लाह ने। यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, अल्लाह के चुने हुए हैं, उनका एहतराम लाजिम है। चुना है ना अल्लाह ने। तो इतनी अजीम बीबी कि एक तोहफा बीबी को अल्लाह की तरफ से मिला और एक तोहफा बीबी को नबी की तरफ से मिला। दो तोहफे शहजादी को मिले। क्या तोहफे मिले? तोहफे ये मिले हैं कि नबी की तरफ से, पहले आपको सुनाओ तोहफा क्या मिला। कि जब खैबर फतह हुआ और नबी वापस आ रहे हैं तो यहूदियों ने नबी को एक बाग दिया। ये गिफ्ट था, जिसे कहा है तोहफा था, तोहफा था। ये सिर्फ नबी के लिए, माले गनीमत नहीं है। माले गनीमत इसमें किसी और का हक नहीं था, ये सिर्फ नबी का था। नबी को दिया तो नबी ने ये तोहफा कबूल किया। अब आयत आ गई कि हक अपने अक़रबा को दे दो। तो नबी ने फिदक दे दिया बतूल को। तो फिदक तोहफा है नबी की तरफ से बतूल के लिए। इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। फिदक तोहफा है नबी की तरफ से बतूल के लिए। अब जितनी बड़ी जात तोहफा दे, उस तोहफे की उतनी अहमियत होती है। उस तोहफे की उतनी अहमियत होती है, उतनी अहमियत। तो नबी ने तोहफा दिया तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अब अगर अल्लाह कोई तोहफा दे तो नबी से भी ज्यादा होगा ना, वो नबी से भी ज्यादा होगा। तब सुनिएगा, नबी से जो तोहफा बतूल को मिला उस तोहफे का नाम है फिदक। अब अल्लाह की तरफ से बतूल को क्या तोहफा मिला? तो नबी चले मेराज पर। और जब मेराज के लिए नबी रवाना हुए तो आसमानों की मंजिलें तय कर रहे थे कि एक मर्तबा नबी ने देखा कि एक ऊंटों की कतार है, सफ है, लाइन है, जिसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता, न ये पता है कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। इतनी तवील सफ, गौर कीजिएगा, इतनी तवील कतार है ऊंटों की और हर ऊंट पर एक संदूक रखा हुआ है। तो नबी जब मासूम कोई सवाल करता है तो वो अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं पूछता है, वो हम तक पहुंचाने के लिए पूछता है। क्योंकि जब आपस की बातें होंगी तो रावी दिखेगा कि ये बात हुई थी, वो रवायत हम तक पहुंचेगी, हम आप तक पहुंचा देंगे। तो मासूम अपने लिए नहीं पूछता है, हम तक पहुंचाने के लिए। अब जब जिब्रील आगे बढ़े और वो कतार है, नबी सवाल करते, जिब्रील ये ऊंटों की कतार नजर आ रही है? हाँ या रसूल अल्लाह, ये कतार है। आवाज दी कि ये कैसी कतार है? आवाज दी, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आपकी बेटी फातिमा को तोहफा दिया गया। सुनिए, अल्लाह की तरफ से आपकी बेटी सैयदा के लिए तोहफा है। तो नबी ने कहा इस तोहफे में है क्या? कहा आप बाप हैं, आप देख सकते हैं, मुझे तो इजाजत नहीं है। मुझे तो इजाजत नहीं है। आप बाप हैं, आपको इजाजत है, देख सकते हैं। का संदूक उतारा जाए। आवाज दी क्या अलग अलग हर संदूक में कुछ और है? कहा नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है, मगर उन चीजों में जो चीज है वो अलग अलग है। जानिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा चीजों में क्या चीज है। गौर कीजिएगा। तो आवाज दी, अच्छा एक संदूक उतारो। एक संदूक उतारा गया। आवाज दी खोलो, खोला गया। तो कहा क्या निकला उस संदूक में? कहा देखो हर संदूक में इसी तरीके से जैसे ये संदूक खोला है। आवाज दी हर संदूक में 1000 किताबें हैं। सुनिएगा, सैयदा को क्या तोहफा मिला है अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से जो सैयदा को तोहफा मिला वो क्या तोहफा है? आवाज दी हर संदूक में 1000 किताबें हैं और हर किताब में 1000 फज़ाइल अलिया है। हर संदूक में 1000 किताबें और हर किताब में 1000 फज़ाइल अलिया है। इसका मतलब ये है कि नबी के दिए हुए तोहफे का नाम फिदक है, अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट का नाम अली के फज़ाइल है।
सैयदा ने आज तक नबी के दिए हुए तोहफे को चुराने वाले को माफ नहीं किया। अगर अल्लाह का दिया हुआ तोहफा कोई चुरा ले उसे सैयदा माफ कर दे। और करें तो फजाइल अल्लाह का दिया हुआ तोहफा, फिदक नबी का दिया हुआ तोहफा। फिदक ये बाग फिदक ये मामूली नहीं है, ये किसी एक बाग का नाम नहीं है कि 200-400 खजूर के पेड़ लगे हैं। जब बादशाह ने इमाम से पूछा कि मैं फिदक वापस करना चाहता हूँ, बताइए उसकी हुदूद क्या है, हदें क्या है। इमाम ने कहा चुप रहे तो ज्यादा अच्छा है। कहने नहीं बताइए मैं दे दूंगा, फिदक वापस कर दूंगा। इमाम ने जो हदें गिनवाना शुरू की तो उसमें खाली उसका मुल्क नहीं कई मुल्क आ रहे थे। तो उसने कहा मौला फिर बचेगा क्या। और कर रहे हैं आप, फिदक किसी एक बस्ती का नाम नहीं है या किसी एक खाली छोटे से बाग का नाम नहीं है। ये जो दुनिया ने कब्जा कर लिया है ये बहुत बड़े एक इलाके का नाम है। और कर रहे हैं आप तो सैयदा जब फिदक के चोरों को माफ नहीं करती, फिर फजाइल के चोरों को कभी नहीं। जब नबी के दिए हुए तोहफे को छीनने वाले फिर अल्लाह के दिए हुए तोहफे। और कर रहे हैं आप तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने हक के सैयदा लिया उनसे सैयदा है नाराज। और नबी की हदीस है कि जिससे सैयदा नाराज उससे अल्लाह नाराज। और फिर आगे बात बढ़ जाएगी, जब अल्लाह नाराज है तो फिर वो जहन्नमी। इसका मतलब दुश्मन सैयदा जहन्नमी। अब जो बड़े दुश्मन सैयदा के पास आते हैं तो कहते हैं या अली मुझे कुछ बात करना है, का बतूल नाराज है, का फिर भी मैं चाहता हूं मना लूं सैयदा को। कहा मैं इजाजत लेता हूं बतूल से। जब अली ने कहा तो सैयदा ने खामोशी अख्तियार की। एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। अब जब दोनों दुश्मन सैयदा आके बैठे, सैयदा ने फिर भी पर्दा होने के बावजूद मुंह फेर लिया। पर्दा होने के बावजूद काम से नाराज है। तो बतूल ने पहले इकरार लिया, का ये बताओ क्या ये नबी की हदीस नहीं है कि जिससे बतूल नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। तो उन्होंने कहा हाँ है हदीस, सुनिएगा। हाँ है हदीस, ये है हदीस, सुनी है, खुद मैंने अपने कानों से सुनी है। नबी ने फरमाया जिससे फातिमा नाराज अल्लाह नाराज है। का जिससे अल्लाह नाराज का वो जहन्नमी है। तो बीबी ने कहा हाँ तो फिर ये हदीस अगर तुमने सुनी है तो मैं तुम दोनों से नाराज हूँ। देखिए ये मामूली बात नहीं है जिसे आसानी से सुना, मामूली बात नहीं है। जनाब सैयदा बीबी जहरा वो बीबी जो अपने बाप के लिए रहमत बनी। और कीजिएगा मेरे अजीजों, मैं आपको चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें आप तक बयान हो जिससे इल्म में इजाफा होता रहे, थोड़ी थोड़ी सही, क्योंकि आज से मुझे मसाइल ज्यादा पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें, एक या दो बातें ऐसी तारीख की भी बताऊंगा ताकि हमारे बच्चों के जहनों में बातें बैठ जाएं। सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि सैयदा के कत्ल का जरिया यही बने। अब मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जनाबे बुरैर इब्न हमदानी, करबला के शहीदों में एक नाम है जनाबे बुरैर। जनाबे बुरैर इन्होंने इमाम से इजाजत ली और कहा कि इजाजत दीजिए मौला, मैं पिसरे सास से कुछ बात करना चाहता हूँ। मौला ने कहा जाओ इजाजत। आए पिसरे सास, तो बगैर सलाम किए हुए उसके सामने बैठ गए, बगैर सलाम किए। सुनिएगा,
تو ایک مرتبہ کسرا صاحب کہتا ہے بریر تم نے مجھے نہ سلام کیا نہ میرا احترام کیا، کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو؟ بریر کا جواب سنیے گا، آواز دی کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو؟ آواز دی اگر مسلمان ہوتے تو نواسۂ رسول کو مارنے کیوں آتے؟ یہاں سے نتیجہ وہاں کا نکل آیا کہ جو نواسۂ رسول کو مارے جب وہ مسلمان نہیں ہے تو جو دختر رسول کو مارے نواسے کو مارے جب وہ مسلمان نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہاں بھی سلام، جناب مسلم نے بیوی زینب کو سلام نہیں کیا تھا۔ یہ دلیل ہے کہ دشمن اہل بیت۔ تو اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اگر مسلمان نہیں تو پھر ان کے ہاتھ سے لینا کھانا پینا۔ اسلام نے، شریعت نے اس بات کی اتنی اجازت دی ہے کہ جب تک امام نہیں آئے تب تک وہ صاحب کتاب ہے اس لیے لے لیجئے۔ اور کر رہے ہیں صاحب کتاب ہے اس لیے لے لیجئے، کتاب کی وجہ سے ہے یہ مسئلہ، ورنہ جب امام آئیں گے تو منظر عجیب ہوگا، اور پھر دیکھیں گے کون علی علی نہیں کرے گا۔ کون علی علی نہیں کرے گا۔ اب اس موقع پہ مجھے اپنے ہی 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو۔ ہاں کہ امام آئیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ قطرہ قطرہ دریاؤں کا دیکھنا کھل کر بولے گا، قطرہ قطرہ دریاؤں کا دیکھنا کھل کر بولے گا، امرا کے بیٹے کی ولا میں خانہ داور بولے گا۔ تو آئیں گے جب غیب سے مولا اور چلے گی تیز علی، ارے شیعہ کیا ہاتھ دشمن حیدر حیدر پھر دیکھیں گے کون علی کا مخالف بچے گا، کون علی علی نہیں کرے گا، کون علی کے نعرے نہیں لگائے گا، کون علی حق نہیں بولے گا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ علی پہ کرے حق کا نام ہے، علی مجسمہ حق کا نام ہے، علی کی طرف اگر دیکھیے تو حق دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے نا کہ نبی کے پاس آنے والا آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے حق دکھائیے، بتائیے نہیں، حق دکھائیے۔ نبی نے کہا اس حجرے میں چلے جاؤ۔ اب جو صحاب گئے، صحابی پہنچے تو کیا دیکھا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حجرے میں جاؤ۔ آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ حق دکھائیے، بتائیے نہیں، بتا تو چکے ہیں، حق دکھائیے۔ تو نبی نے حق دکھانے کے لیے کہا اس حجرے میں چلے جاؤ۔ اب بلا تشبیہ نبی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لطف اٹھائیں گے، بلا تشبیہ نبی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اس حجرے میں صحابی جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں علی نماز پڑھ رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دونوں باتوں کو میں بس ملا کے پیش کر دوں، لطف اٹھا لیں گے آپ۔ دونوں باتوں کو ملانا میرا کام ہے، لطف اٹھانا آپ کا کام ہے۔ وہاں صحابیت، یہاں رسالت، غور کیجئے گا، صحابیت وہاں ہے حجرے میں، یہاں رسالت ہے موجود، وہاں علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب صحابی کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ یہاں علی ہے، غور کیجئے گا، یہاں تو علی ہے، نہیں نہیں اور آسان کر دوں، صحابی کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ علی، نبی کہہ رہے ہاتھ، وہ کہہ رہے علی، نبی کہہ رہے ہاتھ، وہ کہہ رہے علی، نبی کہہ رہے ہاتھ، وہ کہہ رہے علی، نبی کہہ رہے ہاتھ۔ شاید میرے نوجوانوں نے وہیں سے یہ نعرہ بنا لیا، علی ہاتھ، 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 صحابیت اور رسالت کی باتوں کو ملا کے نوجوانوں نے نعرہ بنا لیا، علی ہاتھ۔ صحابیوں نے کہا علی، نبی نے کہا علی، نبی نے کہا علی، نبی نے کہا، علی والوں نے بھی کہا علی ہاتھ۔ اگر حق کے ساتھ رہنا ہے، حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچانیں گے یہ چیز حق ہے؟
ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے نا، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے. تو نبی نے فرمایا حق وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے. اگر علی کے آگے نکل گیا تو حق نہیں ہے، علی کے پیچھے رہنے والا حق ہے. اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ علی نے کسی کے پیچھے کیا نماز پڑھی ہے، اور کر رہے ہیں حق جب یہاں ہے تو بھی ان کے پیچھے رہنا ہے، اور نماز حق ہے، ان کے آگے جا ہی نہیں سکتی. بہت بڑے عالم دین شیخ صدوق ان سے کہا گیا کہ کیا علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں بڑی بات بھی کون سی ہے؟ آواز دی کیا مطلب ہے؟ آپ کی قوم کے سامنے اگر کہا جاتا ہے تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں. آپ اتنے بڑے عالم ہو کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی پیشانی پر بل ہے، نہ اضطرابی، نہ پریشانی، کچھ نہیں. تو آپ مطمئن ہیں؟ کہ مطمئن میں اس لیے ہوں، سنیے گا شیخ صدوق کا جواب. کہ مطمئن میں اس لیے ہوں کہ میں علی کو مانتا ہوں امام، اور جماعت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ امام ہوتا ہے. جہاں سے علی کھڑے ہو گئے وہاں سے جماعت شروع ہے. جماعت پھر اگر کوئی علی کے آگے ہے کہ اس کی حیثیت پلر سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں امام ہو. اگر میرا مولا امام ہے تو جہاں علی کھڑے ہو جائے وہیں سے نماز شروع ہے. اس کے آگے اگر کوئی چلا گیا تو وہ پلر ہے. اور کر رہے ہیں تو علی حق ہے، اور جو حق کے پیچھے چلے وہی حق ہے. حق کی پہچان یہی ہے. میں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا کہ نبی کی بھی پہچان کیا ہے. نبی کی پہچان کس ذریعے سے نبی کو پہچانا جائے کہ جن کو ہمیں ماننا ہے وہ یہی نبی ہے. کیونکہ بھائی نام کے ذریعے اگر کوئی کہے کہ محمد نام ہوگا تو نبی ہو سکتا ہے، محمد نامی بہت کھڑے ہو جائیں کہ ہم بھی نبی ہیں، تو کیسے مانیں گے؟ تو میں کل عرض کروں گا کہ دلیل کیا ہے کہ محمد رسول اللہ جن کو ہم مانتے وہی ہمارا نبی، وہی ہمارا نبی. بس بات کو مختصر کر رہا ہوں، آخری مرحلہ گفتگو تمام. میں آج ہی پڑھتا یہ دلیل، لیکن کل کی بات ہمیں یاد ہے جہاں پہ چھٹی تھی، اس لیے اس کو مکمل کر دیا جائے پھر کل بات. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں اس لیے کہ آپ بھلے ہی نہ یاد رکھیں، ہمیں تو یاد رکھنا پڑے گا. تو غور کیجئے گا، اللہ جن کو چنتا ہے ان کو اختیارات دیتا ہے، ان کو قدرت دیتا ہے. یہی اللہ کے چنے ہوئے کی پہچان بھی ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو آپ اس سے دلیل مانگ سکتے ہیں، معجزہ دکھاؤ. اگر اللہ کی طرف سے آئے ہو تو معجزہ دکھاؤ. عیسیٰ آئے معجزہ دکھایا، موسیٰ آئے معجزہ دکھایا، ابراہیم آئے معجزہ دکھایا، یعقوب آئے معجزہ دکھایا، خضر آئے معجزہ دکھایا. تو معجزات دکھائے نا، تو یہ اختیار ہی بتائے گا کہ اللہ کا چنا ہو. تو اب جب امام نے دعا کی اور بارش ہو گئی، بات یہی تھی نا، دعا کی اور بارش ہو گئی، یہ اختیار دکھایا امام نے. تو لوگوں میں کھلبلی پیدا ہوئی کہ یہ تو اختیار دکھا دیا، حکومت تو پڑ گئی خطرے میں، اب کیا ہو. تو اس نے کہا ہے کھڑا ہو کے دربار میں کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟ کہ امام کو بلاؤ. یہی بات تھی نا، امام کو بلایا گیا. اب جب امام آئے اور مسند پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا وہ تو بارش اس وقت ہونا ہی تھی، اور اتفاق یہ رہا کہ آپ نے دعا کی، ورنہ اگر اس وقت ہم دعا کرتے ہیں تو بارش تو ہونا ہی تھی، ہو جاتی بارش. تو امام نے، کل میں نے یہ عرض کر دیا تھا، امام نے کہا جو بادل پھر ان کی شناخت کی یہ کہاں جا کے برسے گا، تو یہ کیا تھا، تو باتیں بنانا شروع کر دی اس نے. پھر اس نے کہا ہم نہ ایسے مانیں گے، ہم نہ مانیں گے ایسے. اچھا یہ کوشش یہی کر رہا تھا کہ بات یہی پر ختم ہو جائے، لیکن اب امام نے ختم ہونے نہ دی.
कहने बात तो आगे बढ़ेगी। उसने कहा नहीं हम तो नहीं मानेंगे, बारिश बस इत्तेफाक है, वो होना ही थी इस वक्त और आपने वो दुआ कर दी तो हो गई। कोई भी दुआ करता उस वक्त क्योंकि मुअय्यन था वक्त, वो हो जाती बारिश, बात खत्म हो गई। इमाम ने कहा नहीं अभी कहाँ खत्म हुई, अभी तो शुरू हुई है। कहा क्या मतलब है? कहा नहीं मैं मनवा के रहूंगा, तू बता कैसे मानेगा, तू बता कैसे मानेगा कि बारिश हमारी दुआ से हुई है। तो कहता कि अगर आप साहिब अख्तियार है, जब इरफान इमामत ना हो तो कुछ भी जबान से निकल जाता है, तो और कीजिएगा। उसने कहा कि अगर आपके अख्तियार से बारिश हुई है, आपकी दुआ की वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है, तो फिर ऐसा कीजिए ये जो कालीन पर शेर बने हुए हैं, तस्वीर बनी हुई है, इनसे कहिए उठे उठे। अगर इतना ही कहता तो शायद इमाम खाली उठाते। उसने कहा ये उठे और मुझे खा ले। तो इमाम ने कहा ठीक है तेरी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। इमाम ने सिर्फ देखा। अब बाज़ रवायतों में तो यहां तक मिलता है कि इमाम ने उससे शेरों से नहीं कहा कि उठो खा लो। इमाम ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा नाम लेके इनसे तू कह दे उठ जाएंगे। जो भी रवायत मान ले, दोनों से अख्तियार इमामत साबित है। कौन सी देगा? बस एक मर्तबा इमाम ने उन शेरों की तरफ देखा, शेर दहाड़ते हुए उठे, दहाड़ते हुए उठे। अब चूंकि वो पहले ही कह चुका था कि मुझे खा ले, तो शेरों ने इजाजत मेरी बात से नहीं दी कि मौला मैं खा जाऊं। नहीं, ये तो इजाजत उसने खुद दे रखी है, मुंह का निवाला बना लिया। अब शेरों ने देखिए, अगर यहाँ पे ही शेर फौरन खाते और फिर तस्वीर बन जाते तो लोग फिर कह देते ये तो इत्तेफाक था। उठे, खाया, फिर चले गए। नहीं, शेर अब खड़े हुए। शेर, अब जुमला सुनिएगा, मैं किताब का जुमला सुना रहा हूं, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं, गौर कीजिएगा, किताब की बात सुना रहा हूं। शेर खड़े हुए, उसको मुंह का निवाला बना चुके, दरबार पूरा थर्रा रहा है, सारे दरबारी कांप रहे हैं। और कर रहे हैं आप, सारे दरबारी कांप रहे हैं, सारे दरबारी कांप रहे हैं कि दो शेर हैं, दो शेर हैं। अब होगा क्या? कयामत का मंजर है। बात रवायतों में कि एक तस्वीर बनी, जो भी माने, बहरहाल शेर है। अब सारे लोग कांप रहे हैं। अब शेर अपनी जबान में मौला से कहता है मौला इसका काम तो तमाम हो गया है, अब इजाजत दीजिए तो जो आपके पहलू में बैठा है इसका भी काम तमाम किया जाए। जैसे ही उसने ये सुना बेहोश हो गया। हाँ, शेर एक तो बातें कर रहा है खाने की, बेहोश हो गया। अच्छा, अभी भी शेर गए नहीं, शेर खड़ा हुआ है, उस पे पानी के छींटे डाले गए, फिर होश में आया। फिर शेर कहता है आका इजाजत है, फिर बेहोश। तारीख कहती 3 मरतबा ऐसा हुआ। तो इमाम ने कहा नहीं ये तुम्हारा लुकमा नहीं है, इसको नहीं खाना। इमाम ने कहा फिर मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा तस्वीर बन जा। जब तस्वीर बन गया तो पहलू में बैठे हुए के जान में जान आई। कहा मौला उसको मेरे शेर से कहिए कि वो उगल दे। आवाज दी कि अगर मूसा के जादूगरों को मूसा के असे ने फिरौन के जादूगरों को उगला होता तो मेरा शेर भी उगल देता, मेरा शेर भी उगल देता। आवाज दी मौला तो क्या वापस नहीं आ सकता है? नहीं, अब तो नहीं आएगा, शेर मुजस्सम बन गया है। मौला आपके अख्तियार में सब कुछ है। यही तो मैं इतनी देर से समझाना चाहता था, मेरे अख्तियार में सब कुछ है। अगर पहले ही मान लेता तो ये होता ही ना, पहले ही मान लेता तो होता ही ना। उसने सोचा था कि माज़अल्लाह इमामत को रुसवा किया जाए, खुद चला गया, अब नहीं आ सकता है, अब उसका मुकद्दर जहन्नम है।
अब उसका मुकद्दर जहन्नम। तो एक बात यहाँ से और भी पता चली कि जो भी इमामत के मुकाबले में आए उसका मुकद्दर ही जहन्नम। कोई भी आए, किसी सिंफ की भी आए, कोई जिन्स हो, जो भी अली के मुकाबले में आए मुकद्दर जहन्नम है। कहीं भी आए, किसी मैदान में आए, किसी मैदान में आए, मुकद्दर उसका जहन्नम। मुकाबले में आ गया तो फिर इसीलिए अली अपने मुकाबले से पहले कहते थे कलमा पढ़ लो, छोड़, क्योंकि मुकाबले में आने के बाद फिर मुकद्दर जहन्नम है। यही वजह है कि जब खूली इमाम हुसैन का सर लेके चला है नहीं, तो उसने एक दीवार पर लिखा हुआ देखा, दीवार पर लिखा हुआ देखा कि जितने भी हुसैन के कत्ल में शरीक हैं उनका मुकद्दर जहन्नम। मुकद्दर यहाँ तक के जो तारीख कहती है जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ले जाने में करबला से शाम तक शरीक थे, उनमें से एक शख्स था जो काबे के पर्दे से लिपटा हुआ कह रहा था कि मैं तो कभी नहीं बख्शा जाऊंगा। तो लोगों ने कहा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद क्यों है? कहा इसलिए कि मैं हुसैन के मुकाबले में आ गया। अब अल्लाह सबको बख्श सकता है, मगर जो मासूम के मुकाबले में आए उसको नहीं। मैंने खुद भी कहा है, जनाब मूसा ने दुआ की कौम के लिए, जनाब नूह ने दुआ की, और ये दुआएं जब हुई हैं तो अल्लाह कहता है सबके लिए दुआ करो हम बख्श देंगे, मगर कातिल मासूम यानी कातिल हुसैन उसको कभी बस मेरे से 5 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आ गई, अल्लाहु अकबर। पाँच दिन और बचे। खूब रोइएगा, खूब गिरिया कीजिएगा, खूब मातम कीजिएगा, कभी भी कोताही ना किया करें, जैसे जिससे हो सके वैसे शरीर। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे जिससे हो सके वैसे शरीर। कभी भी आज़ादारी के उन्वान से अगर कोई काम हो रहा है तो बढ़ के हिस्सा लें, कोशिश करें, उससे कहें कि ये काम हमारे जिम्मे कर दो, हम कर दें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अजीजों, इसकी बड़ी अजमत है अज़ाए हुसैन, बहुत फजीलत। आपकी खिदमत में किसी दिन अगर मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा मैं, आज़ादारी कितनी अहमियत की हामिल है, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से बहुत मामूली इबादत समझ लेते हैं और ज़बान खोलने में डरते नहीं हैं। तो आज़ादारी को हम बताएंगे कितनी अहमियत है। सुनो, आज उन शहजादों का मातम कि जिन पर सब रोए मगर मां न रोए। आज से, क्योंकि आज से मुसलसल अब शहादतें बयान होंगी, तो इसलिए आज से मैं फजाइल थोड़ा कम करता रहूँगा, मसाज ज़्यादा करता हूँ, ताकि ये आज़ादार दिल खोल के रो सके। हाँ, कोताही नहीं करना, शर्माना नहीं। मैं मिंबर से वादा करता हूँ कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ये भी नहीं कहेगा या दिल में रो या रात में रो, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान के
ایسے توقع ہو اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ مساعد تو مقتل تو وہی ہے نا، تصور شرط ہوتی، اگر تصور کر لیں گے تو روئیں گے، مقتل تو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اہل مقاتل لکھتے ہیں کہ جب یزید نے حسین سے بیعت لی، مانگی اور امام نے انکار کیا، امام نے انکار کر دیا۔ میں عرض کروں گا میرے عزیزوں کہ پوری دنیا یزید جانتا تھا کہ پوری دنیا اگر ہماری بیعت کر لے پھر بھی ہماری حکومت مستحکم نہیں ہے جب تک حسین نہ بیعت کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے یزید کو سب ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر اگر حسین نہیں مان رہے ہیں تو ایک کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن یزید امام حسین کے پیچھے پڑا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو ہماری حکومت مستحکم ہے۔ لیکن امام نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ کبھی بھی معصوم ایسے ظالموں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ امام نے یہی جملہ کہا نا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے۔ نہیں بتایا ہے کہ آدم کبھی شیطان کی بیعت نہیں کر سکتے، موسیٰ کبھی فرعون کی بیعت نہیں کر سکتے، ابراہیم کبھی نمرود کی بیعت نہیں کر سکتے، حسین بھی تجھ جیسوں کی بیعت کرے۔ میں موجود ہوں رسول کا وارث، تو تجھے چاہیے کہ میری بیعت کر۔ لیجئے انکار ہو گیا ادھر سے، اب تاریخ کہتی سامان سفر تیار ہو رہا ہے، سامان سفر کے مدینے سے رخصت ہوا۔ جب مولا علی نے جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے کی تو بی بی زینب نے ایک شرط رکھی تھی شادی کے وقت، آواز دی کہ شرط یہ ہے کہ مجھے کبھی حسین سے جدا نہ کرنا۔ بتا رہا ہوں آرام سے آگے بڑھنا، مجھے بہت آگے جانا، لیکن خدا کے لیے رونے میں کمی نہ کرنا۔ بس سوچتے جاؤ، آنکھیں بند کر کے تصور لاؤ اور کربلا میں اپنے زہرا کو لے کے جاؤ۔ سننا، آواز دی عبداللہ، شرط یہ ہے کہ حسین سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ آواز دی شہزادی، یہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ حسین تو ہمارے بھی آقا و مولا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ کبھی ہم خود نہیں چاہیں گے۔ آواز دی عبداللہ، بس میں اتنا کہوں گی کہ اگر کبھی بھی حسین سے جدا کرنے کی کوشش کی تو عبداللہ اتنا سن لو کہ حسین ایک دروازے سے جائے گا، زینب کا جنازہ دوسرے دروازے سے۔ زینب بھائی کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی، شہزادی ایسا نہیں ہو سکتا، جہاں حسین ہوگا وہیں آپ ہوں گے۔ لیجئے اب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب قافلہ چلنے لگا تو دو بیٹے جعفر طیار کے بیٹے علی کے نواسے اور محمد، ایک کا نام موت، ایک کا نام محمد، ابھی آپ زیارت بھی کریں گے شبیہ کا، ایک کا نام موت، ایک کا نام محمد۔ سننا، اہل مقاتل نے لکھا کہ جب چلنے لگے تو عبداللہ نے شہزادی کو بلایا، تو مدینے سے رخصت ہو گیا، عبداللہ نے شہزادی کو بلایا۔ شہزادی جاتے ہی عبداللہ سے کہہ رہے عبداللہ روکنا نہیں، عبداللہ منع نہ کرنا،
आवाज़ दी शहजादी, मैंने मना करने के लिए थोड़ी बुलाया है, मैंने तो इसलिए बुलाया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये औना मोहम्मद है। इनको साथ ले जाओ, अगर हुसैन पर कोई सख्त वक्त आ जाए, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। दोनों की कलाई माने थामी। करबला काफिला पहुंच गया, आशूर का दिन आया, लेकिन उसके पहले का मंजर बताऊं, शबे आशूर। तो शब आई है आशूर, करबला की माओ पर जाने कुर्बान हो जाए, हमारे खानवादे कुर्बान हो जाए। करबला की माएँ अजीजों, आप तस्वुर कर सकते हैं करबला की माओ का? करबला की माएँ कैसी हैं? अगर किसी हम में से किसी की माँ को पता चल जाए कि इस रास्ते में खतरा है, तो माँ फौरन कह देती है बेटा घर से नहीं जाना, अगर जाना है तो उस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाओ, है ना। लेकिन करबला की माओ को पता है कल क्या होने वाला है। अब सब में बैठी हुई हर माँ कहती है बेटा कल सबसे पहले तुम जान देना, सबसे पहले तुम कुर्बान हो जाना, सबसे पहले तुम कुर्बान हो जाना। अरे करबला की माओ को और समझेंगे, समझाओ एक जुमले में। जनाबे वहबे कल्बी आते हैं, जनाबे वहबे कल्बी को चारों तरफ से घेर लिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया, और सर जुदा करने के बाद जनाबे वहबे कल्बी के बालों को पकड़ा, जालिमों ने बालों को पकड़ा। क्या करूं, अगर ये जुमला तारीख में नहीं होता तो मैं कभी नहीं कहता, मैं इतने सख्त जुमले पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन ये जुमला मक्तल में मौजूद है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। सुनना अजीजों, बालों को पकड़ा जालिम ने, और बालों को पकड़ने के बाद फिर भी बहुत एहतियात कर रहा हूं, अगर आप समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। बालों को पकड़ के वहब के जनाबे वहबे कल्बी के बालों को पकड़ के सर्तन से जुदा है, बालों को पकड़ के देखा खैमे के बाहर वहब की माँ खड़ी है, बालों को पकड़ के एक मर्तबा सरे वहब को माँ की तरफ रवाना किया। माँ के करीब सर आया, जो जुमले हैं मैंने बड़ी एहतियात से पढ़े हैं। माँ के करीब जो सर आया, एक मर्तबा माँ ने अपने चरण से बेटे को देखा। कोई माँ होती तो तड़प जाती, कोई माँ होती सीने से लगा लेती और रोना शुरू कर देती, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे दिल का चैन, हाय मेरी आंखों का नूर। लेकिन मंजर अजीब है कि जैसे ही सर आया, एक मर्तबा वहब की माँ ने सर उठाया, और उठाने के बाद वही सालियों की तरफ रवाना करके आवाज दी कि जो मैंने हुसैन का कुर्बान कर दिया वो मैं वापस नहीं लेते। जज़ाकल्लाह, मैंने कुर्बान कर दिया हुसैन पर। ये है करबला की माँ। अब सारी बीवियां अपने अपने बच्चों से कह रही कल हुसैन पर कुर्बान हो जाए। इधर ज़ैनब मोहम्मद से कह रही मेरे शहजादों, तुम तो जानते हो ना कि कल कौन सा दिन है। मेरी आंखों की नूर और मोहम्मद, कल लाज रख लेना जाफर तैयार की, ये मुर्तजा की। अम्मा इजाजत दिलवा दीजिएगा, फिर देखिएगा कि अली के नवासे जाफर तैयार के पोते कैसे लड़ते हैं। लीजिए अजीजो, तारीख कहती है सुबह हुई, आशूर का रोज है, अब एक एक करके मैदान में आने लगे। हुसैन जनाजों पर जनाजे उठा रहे, लाशों पर लाशें उठा रहे हैं, हुसैन सब पर गिरिया भी कर रहे हैं। लीजिए शहजादे आगे बढ़े, मामू क्या इजाजत है मैदान में जाओ? कैसे इजाजत जो आंखों का नूर हो। आवाज दी, मामू इजाजत दे दीजिए, मैं चाहता हूँ मैदान में जाऊं। आवाज दी, अगर मैंने इजाजत दी तुम्हारी माँ ज़ैनब का क्या होगा? आवाज दी, मामू अम्मा ने ही तो भेजा है, अम्मा ने ही भेजा है। एक मर्तबा हुसैन का सर झुका हुआ है। आवाज दी, मेरे शहजादों वक्त आएगा, इस वक्त अभी नहीं। तो जैसे ही ये कहा, अब शहजादे खैमे में नहीं गए,
बल्कि करबला में टीले पर धूप में दोनों शहजादे खड़े हुए, दोनों शहजादे खड़े हुए। अब्बास की नजर पड़ गई, आवाज दी, दौड़े हुए आए, आका आका लोग मोहम्मद वहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? आवाज दी, बुलाओ मेरे शहजादों को। बुलाया, आवाज दी, मोहम्मद धूप में खड़े होने का सबब क्या है? आवाज दी, मामू मैं कहाँ जाऊँ? अम्मा मैं खैमे में जाता हूँ तो अम्मा सवाल करती है अभी तक मैदान में नहीं गए, आपके पास आता हूँ तो इजाजत नहीं मिलती, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हुसैन ने सीने से लगाया, जाओ मेरे शहजादों, खुदा हाफिज। लेकिन मेरे शहजादों ऐसे न जाना, अम्मा से इजाजत ले लो एक बार, अम्मा से रुखसत हो लो। दोनों शहजादे आए और खुशी के आलम में आए, खुशी के आलम में आए। सुनना अजीजों, ऐसे माहौल में किसी के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आती है, लेकिन हर एक को हुसैन पर कुर्बान होने की कितनी तमन्ना है। अजीजों, तारीख कहती है दो जानू होकर दोनों शहजादे माँ के सामने बैठ गए। अम्मा इजाजत मिल गई है, अम्मा इजाजत मिल गई है, अम्मा मैं जा रहा हूँ मक्तल में, अम्मा खुदा हाफिज। ये कहकर शहजादे उठने लगे। एक मरतबा ज़ैनब कहती, मेरे शहजादों मैं तुम्हारी बहादुरी से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारी शजाअत को जानती हूँ, क्योंकि तुम्हें अब्बास ने तलवार सिखाई है, तुमने तुमको अब्बास ने जंग सिखाई है। ए मेरे शहजादों मैं जानती हूँ अली के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, लड़ते लड़ते फुरात पे पहुंच जाओगे। मेरे शहजादों फुरात पे जाना तो पानी न पीना, इसलिए कि तुम मेरे लाल हो, हुसैन ज़हरा का लाल है। जब तक हुसैन पानी न पी ले मेरे शहजादों पानी न पीना, क्योंकि ज़हरा का लाल प्यासा है। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा दोनों बच्चों ने वादा किया, लीजिए मामू के पास आए, दोनों शहजादों को सवार किया गया। अब तारीख कहती है सवार किया गया, दोनों शहजादे मामू से अलविदा होते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं और चलते हैं, मक्तल में आ गए। लीजिए अब दोनों भाई हमले में मसरूफ होते हैं, जंग करते हैं। अली के नवासे हैं ना, अली के नवासे हैं ना, अब्बास मुजावर के शागिर्द हैं ना। अजीजों हमलों पर हमले कर रहे हैं। एक मर्तबा हमला करते करते फिर एक साथ दोनों भाई आ जाते हैं और एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं। मोहम्मद खैरियत तो है, और खैरियत तो है। लीजिए आवाज दी, हाँ भाई खैरियत है, आओ भाई। फिर अब अली के जौहर, शजाअत के जौहर दिखाते हैं। ये कहते हुए फिर हमला करते हैं। फिर मकाम एक आता है, फिर दोनों मुलाकात करते हैं। भाई खैरियत से हो? हाँ भाई हम खैरियत से हैं। आप खैरियत से हैं? हाँ मैं भी खैरियत से हूँ। फिर दोनों भाई कहते हैं आओ अब्बास की शजाअत के जौहर दिखाएं। फिर दोनों शहजादे हमला करते हैं, फिर एक मकाम पे आके मिल जाते हैं, आवाज देते हैं भाई खैरियत से हो? हाँ खैरियत से। फिर आवाज देते हैं और जाफर तैयार की शजाअत दिखाते हैं। ये कहते कहते दोनों शहजादे लड़ते जा रहे हैं। कभी मैमना है, कभी मैसरा है, दोनों साथ साथ अब नहीं है, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। एक इधर लश्कर से लड़ रहा है, एक इधर लश्कर से लड़ रहा है। तारीख कहती है कि एक मकाम ऐसा आया कि दोनों शहजादे लड़ते लड़ते फुरात के किनारे पहुंच गए। बस एक मरतबा दोनों शहजादे जब फुरात के किनारे पहुंचे तो नकाबों पर पैर रखे और दोनों शहजादे अपने रहबारों पर खड़े हुए आवाज दी, मोहम्मद अम्मा की वसीयत याद रखना, अम्मा की वसीयत याद रखना, हम फुरात पे आ गए, पानी ना पीना। अम्मा की वसीयत याद रखना, पानी ना पीना। एक मर्तबा उधर से आवाज आई, भाई याद है वसीयत? इधर से आवाज आई, भैया हाँ हमें भी याद है। लीजिए फिर दोनों शहजादों ने हमला कर दिया, दोनों शहजादे। अब अजीजों लश्कर बीच में आ चुका है। अब एक शहजादा उधर है, एक शहजादा इधर है। अब लश्कर मिलने नहीं दे रहा, भाइयों को मिलने नहीं दे रहा है। ये दोनों शहजादे अब अकेले लड़ रहे हैं। काफी दूर लड़ते लड़ते पहुंच गए। अजीजों आपने सुना होगा भाई का गम कैसा होता है, भाई का गम कितना होता है, सुना होगा ना। इतना होता है कि इमाम हुसैन खुद कह रहे हैं अब्बास तुम्हारे मरने से कमर टूट। समझ गए ना भाई का गम कितना होता है।
भाई के मरने से कमर शिकस्ता हो जाती है, कमर टूट जाती है। सुनिएगा अजीजों, अब भाई भाई है ना, एक शहजादा वहां लड़ रहा है, एक शहजादा वहां लड़ रहा है। लश्कर यजीद कहता है कि हम दोनों शहजादों का ऐसे काबू नहीं पा सकते हैं। तो फिर क्या करें? कहा कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि जिससे दोनों शहजादे तलवार रोक लें ताकि हम इन पे हमला कर सकते हैं। कहा क्या किया जाए? कहा जो इधर लश्कर वाले हैं वो इधर शोर करें, जो इधर लश्कर वाले वो इधर शोर करें। कहा क्या शोर करें? कहा इधर वाले शोर करें, इधर वाले शोर करें कि मोहम्मद मार दिए गए हैं, और इधर वाले शोर करें कि और मार दिए गए हैं। जब भाई भाई के मरने की खबर सुनेगा तो एक रखने के लिए तलवार रोकेगा, जैसे ही तलवार रोके कोई ऐसा मारना, कोई का तलवार, कोई तलवार मारना, जिसके पास कुछ ना हो वो करबला की कब्र है। जज़ा करना खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई रब्बे सुभाए बने बैठे करबला की रेत जख्मों पर जलती हुई डाले। नीचे अजीजों जैसे ये शोर हुआ, इधर शोर हुआ मोहम्मद मार दिए गए, उधर शोर हुआ और मार दिए गए। दोनों भाइयों ने को तलवार रोकी तो जालिमों ने चारों तरफ से हमले करना शुरू किए। अब दोनों शहजादे रहवार पर समझ न पाए, समझ न सके, बड़े मतलब आवाज दी, आका सलाम कबूल कीजिए। इधर से अब्बास चले, उधर से हुसैन चले। अल्लाहू अकबर। तारीख कहती है कि सराहने पहुंचे, दोनों सराहने पहुंचे। हुसैन ने औन के सर को जान पे रखा, अब्बास ने मोहम्मद के सर को जान पे रखा। अब दोनों शहजादे एक तो प्यासे, फिर जख्मों से चूर, उठने की ताकत नहीं है। दोनों शहजादे एक मर्तबा लब हिलाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं मामू माफ कीजिएगा, इस तकवार को उठ न सकता। मामू इतनी ताकत न रही कि हम आपके तरह में हो सके। हुसैन रोके कहते मेरे बच्चों ऐसा न कहो, मेरे बच्चों ऐसा न कहो। अजीजों एक मर्तबा अब दोनों बच्चे हैं, खून बह चुका है, इतना खून बह चुका है, जख्मों से चूर, प्यासे बच्चे हैं, उठने की ताकत नहीं है। अजीजों यहाँ तक के तारीख कहती है कि सिर्फ लब हिल रहे हैं लेकिन आवाज भी बाहर नहीं आ रही है। सुनेंगे इतना जख्मों से चूर हो चुके बच्चे। तारीख कहती है कि दोनों बच्चों ने इशारा किया। औन ने हुसैन की तरफ इशारा किया, मोहम्मद ने अब्बास की तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया कि मामू अपना कान मेरे दहन तक। मामू दोनों बच्चे कहते हैं अपना कान मेरे दहन तक ले आइए। अब जो कान लेके दहन तक आए तो दोनों बच्चों ने एक ही जुमला कहा, मामू अम्मा से कह देना खुराक पे गए जरूर थे। मुझे पानी नहीं पिया, कहते दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे तारीख कहती है कि हुसैन ने एक के लाशे को उठाया, एक के लाशे को अब्बास ने उठाया। सुनिएगा, एक के लाशे को अब्बास ने उठाया। अब लीजिए लाशे को लेकर आए, खैमे में लाशों को रखा। अब दोनों लाशें बीबियों ने गिरिया करना शुरू किया। बीबियां मातम कर रही है। लीजिए मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। बीबियां मातम कर रही, गिरिया कर रही है। इतने में जैनब को आता हुआ देखा। जब बीबियों ने जैनब को आता हुआ देखा तो बीबियों ने पुरसा देना शुरू किया, माँ है ना, पुरसा देना शुरू किया। लेकिन जैनब आगे बढ़ती रही। अजीजों तारीख कहती है कि आगे बढ़ते औन के लाशे को इधर रखा और मोहम्मद के लाशे को इधर। बीच में बीबी बैठी, आवाज मेरे बच्चों मुझे माफ करना, हम तुम पर न रोएंगे। अल्लाहू अकबर, मेरे बच्चों मुझे माफ करना। अल्लाहू अकबर। हाँ लीजिए तारीख कहती है कि एक मर्तबा जैनब हटी, हुसैन लाशों के बीच आ गए।
اور ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، آج حسین غریب ہو۔ کوہرام بپا ہے، کوہرام بپا ہے۔ بس آخری تو جملے سنے اور اس کے بعد زیارت کیجئے تاہم۔ آخری تو جملے سنے، آخری دو جملے، اور اس کے بعد پھر زیارت کیجئے، پھر کبھی وقت ملا تو آج کر دیں گے۔ سنیے گا عزیزو، اب بہت لے چکے ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سننا عزیزو، تاریخ کہتی ہے زینب کربلا میں نہیں روئی، کربلا میں نہیں روئی زینب۔ اب لیجئے قافلہ اسیر ہو کے چلا بعد قتل حسین، زینب نہیں روئی۔ کوفے کے قید خانے میں قافلہ 8 دن قید رہا، بی بی نہیں روئی۔ شام کا راستہ پورا طے کیا، بی بی نہیں روئی۔ قید خانے میں بی بی رہی، نہیں روئی۔ قید خانے سے رہائی ملی اور محمد کے سر آ گئے، بی بی نہیں روئی۔ سب پر آنسو بہائے لیکن بی بی اور محمد پر نہیں روئی۔ لیجئے مجلس ہو گئی، سب نے گریہ کیا، بی بی نہیں روئی۔ کر لیجئے قافلہ دوبارہ کربلا آیا 40 کے دن، 40 کے دن رہا ہو کے دوبارہ آیا، بی بی سب پہ روئی، ہائے عباس، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے عباس، ہائے حسین، ہائے اصغر، لیکن محمد پر نہ روئی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، رسول آخری سنت میں مدینے آیا، بی بی نہیں روئی۔ روضہ رسول میں پہنچی، پھر بھی بی بی نہیں روئی۔ اماں کی تربت میں آئی، پھر بھی نہیں روئی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی اپنے گھر آئی